صلی علی رسول الکریم فقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت ویجعل اللہ لہن سبیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، یہ سورۃ النساء کا تیسرا اور چوتھا رکوع انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ کل ہم نے دیکھے جو ہے جائیداد کی تقسیم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کر دیا اپنے احکامات کہ کسی کے مرنے کے بعد میں کتنا حصہ کس کے حصے میں آنا چاہیے، اولادوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، اگر کوئی ہے اولاد ہے نہیں ہے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے، کسی کے ماں باپ نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے، پورے واضح احکامات اللہ نے بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو اللہ کی حدود ہے یہ حد سے کوئی تجاوز نہ کرے، حد سے اگر تجاوز کرے گا تو ان کے لیے جو ہے پہلے تو اللہ نے بیان فرمایا کہ حدود پر جو قائم رہے گا اللہ کے تقوی اختیار کر کے تو اس کے لیے جنت میں باغات ہے، اس کے لیے جو ہے اس کے نیچے نہریں ہیں، اور جو کوئی اس سے تجاوز کرے گا اللہ اس کے رسول کے حدود سے سرکشی کرے گا تو اس کے لیے جو دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے بیان۔ آگے میں جیسے کہ شروع بتا تھا کہ اس میں معاشرہ، اسلامی معاشرہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے اندر جو پورے حدیں بیان کی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ابھی آگے جو ہے پردے کے احکامات، میاں بیوی کے کس طرح سے احکامات ہونا چاہیے، اور میاں بیوی کے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے معاشرے میں، عورتوں کے کیا حقوق ہے، مردوں کے کیا حقوق ہے، شوہر اور بیوی کے کیا حقوق ہے، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو، یعنی جو عورتیں جو ہے کوئی زنا کا کام کرے، بدکاری غلط کام کر بیٹھے تو ان پر 4 گواہ ہونا چاہیے، اپنوں سے 4 مرد گواہ ہونا چاہیے۔ کسی عورت نے اگر کوئی بدکاری کی ہے تو ان عورتوں کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا پھر اس کے لیے کوئی سبیل کر دے اللہ نے۔ تو یہ پہلا حکم ہے۔ اس کے بعد جو حکم ہے، آج جو حکم ہے وہ سورہ نور کے اندر آیا ہے۔ ان کو جو ہے شادی شدہ عورت اگر کوئی غلط کام کرتی ہے تو اس کو رجم کا سزا ہے، غیر شادی شدہ لڑکی اگر کوئی غلط کام کرتی ہے اس کو کوڑے مارنے کی سزا ہے، یہ اس سے پہلے کی سزا ہے۔ تو اس میں لیکن 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ تو 4 گواہ اگر گواہی دی 4 گواہوں نے کہ ہاں اس نے فلاں فلاں نے غلط کام کیا ہے تو اس کے لیے وہ ہے، اسی طرح سے مرد کے لیے وہی سزا ہے۔ اب پہلے کیا تھا کہ وہ ان کے مرنے تک ان کو گھروں میں بند کر کے رکھو، آج کیا ہے ان کو مارنا ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت غلط کام کرتی ہے تو اس کو رجم کا طریقہ ہے، وہ آدھا اس کو گڑھے میں گاڑ دیا جاتا ہے زمین کے اندر، اور سارے لوگ اس کو پتھر سے مارتے ہیں، اور جہاں تک کہ مرنے تک پتھر سے مارنا، اور رجم اس کو کہتے ہیں، سنسار اس کو اردو میں کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، جب آیت آئی سورہ نور کا، جب آیت آئی تو مومنوں کا ایمان دیکھو کس درجے کا تھا اس وقت۔ تو ایک عورت آئی، عورت نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے پہلے معاشرہ تو ایک دم گندا معاشرہ تھا، جب اسلام آنے کے پہلے جو ہے وہاں تو جو ہے سوتیلی ماؤں سے نکاح بھی کرتے تھے، اب اس کے آگے آئے گا حکم۔ تو وہ جو پردے کا کچھ نظام نہیں تھا، زنا خوری عام تھی، شراب اور لوٹ کھسوٹ سب تھا۔ تو ایمان لائے لوگ، ایمان لانے کے بعد ایک ایک حکم آنا شروع ہوا۔ پھر یہ جو حکم آیا سورہ نور میں کہ جو زنا کے مرتکب کی ہوئی عورتیں ہیں ان کو جو رجم کر کے سزا دینا ہے۔ تو ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ مجھ سے زنا ہوا ہے، میں زنا کے مرتکب ہوئی ہوں، مجھ پر حد جاری کرو، مجھے پاک کرو۔ انہیں یہیں پر یہ جو کچھ بھی آدھا گڈھے میں گاڑ کر جو جان سے مارنے کا جو سزا ہے اس سے بہت کم سزا ہے جو وہاں ملنے والی ہے۔ وہ ایمان کا ایک درجہ ہوتا ہے کہ انسان بولتا ہے دنیا میں جو ہے پہلا پھیڑ کر یہاں نکل جاتا۔ تو وہ عورت آ کر بیان فرمائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تجھے حمل ہے کیا؟ تو بولے کہ ہاں اس سے حمل ٹھہرا مجھے، آج کے جیسا تو نہیں، آج کل کے جیسا۔ تو جب بچہ ہونے کے بعد عورت آ گئی تو ابھی تو مجھے سزا دو، بولی مجھے پاک ہونا چاہتی ہوں۔ تو بولے کہ اس کو یہ دودھ چھڑانے کے بعد ابھی اس کی ڈپینڈ ہے تیرے اوپر، تجھے سزا دے گی تو اس کا کون دے گا؟
2 साल उसको दूध पिलाई, वो रोटी लेकर हाथ में लेकर देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी खा रहे हैं, अब तो मुझे सजा दो, मुझे माफ करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम का हुक्म दिया। तो रजम जब हुआ तो किसी सहाबी के बदन पर उसका खून उड़ा, तो वो खून को जरा गंदगी से साफ कर रहे थे, यानी उनको ऐसा लगा कि गंदे आवाज हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया कि इस औरत ने जो तौबा की है, वो तौबा का एक कतरा भी अगर पूरे मदीने पर बांट दिया तो सबकी मगफिरत हो जाएगी, ऐसी तौबा इसने की, पाक हो गई। अब उसको बुरा मत बोलो। इस तरह से इंसान का अल्लाह इस्लाम का कानून कवानीन है। तो ये ईमान का दर्जा है। पुख्ता ईमान वाले लोगों को जब मालूम पड़ता है कि हमारे हाथ से गलती हो गई, तो उससे कैसा तौबा करे, कैसा बच कर निकले, इसकी फिक्र करते। परवाह नहीं हमको यहाँ सजा दो, लेकिन वो वहाँ की सजा जो हजारों साल मिलने वाले उससे की कम है। 5-10 मिनट आधा घंटा तकलीफ होगी, उसके बाद जान जाने के बाद क्या तकलीफ हो जाए। लाश को तुम टुकड़े करो, खीमा बनो, तकलीफ होने लगी, वो ईमान रहता हूँ मोमिनों का। ऐसे बहुत सारे किस्से जो है सीरत के अंदर मिलते हैं। वल्लाज़ानी यातियानिहा मिनकुम फआज़ुहुमा फ़इन ताबा व असलहा फ़अरिज़ु अन्हुमा इन्नल्लाह काना तव्वाबुर रहीमा। और जो 2 मर्द मुर्तकिब हो तुम में से, तो इन्हें ईज़ा दो, फिर अगर तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, तो इनका पीछा छोड़ दो, बेशक अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला। ये भी जो है हम जिनसी ताल्लुकात होमोसेक्सुअलिटी के बारे में भी है कि उनको तकलीफ देना यहाँ तक कि मौत आ जाए। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत दर्दनाक सजा देने की सुनाई कि उनको लोग इबरत करें। जो होमोसेक्सुअल जो करते हैं उनको ऐसी सजा देना चाहिए कि आने वाला ज़माना जब याद रखे, जितने लोग देखे वो मरे तक याद रखना चाहिए। इस तरह की सजा देने का हुक्म है, वो भी यहाँ पर आया है। और अगर उन्होंने 2 औरतों के बारे में वैसा ही है, और अगर इस्लाह कर ले तो इनका पीछा छोड़ दो, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला। इसके बाद वो हुक्म आया है, ये पहले का हुक्म है। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअलमूना अस्सूअ बिजहालतिन थुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। फिर तौबा का कानून आया। इसके पहले सूरह आल इमरान में हम देखे थे कि वो लोग जो है अपने तय कोई जुल्म कर बैठे, कोई गलत काम करे तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, फिर अपनी इस्लाह करते हैं, तौबा करते हैं, या तो अल्लाह ताला इनकी तौबा करता है, कबूल करता है। सूरह बकरा में जो आयत थी वहाँ पर कहा गया था कि भला मन कसब सय्यतन व अहातत बिही खतीअतुहु फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। क्यों नहीं, किसी ने एक गुनाह कमाया और उसकी खताओं ने इसको घेरा कर लिया तो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहना है। अब यहाँ अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करना अल्लाह के जिम्मे है। इन लोगों के लिए, इन लोगों की तौबा को कबूल करना अल्लाह के जिम्मे है जो बुराई नादानी से करते हैं फिर जल्दी तौबा करते हैं। इंटेंशनली जो गुनाह किया जाए इसको माफी नहीं है, नादानी से। इसके अंदर नादानी से कि इसके अंदर भी जज्बात भी आ गए, गुस्सा भी आ गया, दोनों में आ गए। गुस्से में भी बहुत ज्यादा गुस्से में आया, कोई किसी को गाली दे दिया, कोई बड़ा बहुत जज्बात के रोह में आ गया, बहुत किसी के ऊपर प्यार आ गया है, बहुत जज्बात में आ गया, जोश में आकर कुछ करते, ये सारी नादानी में मालूम पड़ गया, होश में आ गया कि हमारा ऐसे होना, फौरन जो तौबा करते हैं, इनकी तौबा करना अल्लाह के जिम्मे है। और बस यही लोग हैं जिनकी अल्लाह तौबा करता है, और उनकी और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है, ये कानून है। इसीलिए सूरह बकरा में आए थे, क्यों नहीं, जिसने कोई एक गुनाह कमाया और उसकी खता और उसका घेरा कर लिया, यही लोग आग वाले, जहन्नुम वाले, उसमें हमेशा हमेशा इंटेंशनली कर रहा है, धड़ल्ले से कर रहा है, गुनाह पर जम गया है, इसकी माफी अल्लाह के पास नहीं है। अल्लाह ने क्लियर कर बयान करना। सूरह आल इमरान में हमने देखा कि कोई अपने तय कोई जुल्म कर बैठे नादानी में, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते, यानी बेसावत में हो गया, जज्बात में हो गया, गुस्से में हो गया, नहीं मालूम था गुनाह हो गया, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, तो इनकी तौबा कबूल करता है अल्लाह ताला। यहाँ पर भी अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, सूरह निसा की आयत नंबर 17 और 18 को कानून है ये। बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करना की जिम्मे है इन लोगों की जो करते हैं बुराई नादाने भी, यामलून अस्सूअ बिजहालतिन, नादाने में कोई गुनाह करते हैं, सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, फौरन अल्लाह की तरफ रुजू होना, तौबा करना, इनकी तौबा कबूल। ये गुनाह दोबारा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, इंसान है खता करने वाला, गुनाह नादानी में होना चाहिए, जज्बात के रोह में, गुस्से में, नादानी में, और फौरन तौबा करना चाहिए। वही गुनाह बाद में भी हो सकता है, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जिस वक्त तौबा करते रहते उस वक्त प्योर तौबा करना है, जिंदगी में इसके बाद कभी गुनाह करने वाला नहीं। ऐसे दिल के अंदर से गहराई से नियत करके जो तौबा करते हैं उसकी तौबा अल्लाह कबूल करता है।
बार बार गुनाह अल्लाह ताला बयान फरमा रहा, बार बार गुनाह होंगे तो मैं बार बार तुम्हारी तौबा कबूल करने वाला। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो है धड़ल्ले से गुनाह किया जाए कि भाई इतने ये बता, इसलिए बता रहा हूँ कि 3 मरतबा या अभी तीसरी मरतबा है 4 पारे के अंदर कि हमारे यहाँ कायदा जो है ना, अल्लाह ताला सब माफ करने वाला है, सबको बताया जा रहा है, बेशक माफ करने वाला, बेशक माफ करने वाला, बेशक माफ करने वाला है। पहाड़ जैसे गुनाह रहेंगे तो भी माफ करने वाला है, लेकिन गुनाह गलती से जज्बात में नादानी में किया होना चाहिए। इंटेंशनली जानबूझकर गुनाह कर रहा है, उस पर जम गया, इसका गुनाह माफ करने की तौबा कबूल करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली है। कुरान में कहा गया है अल्लाह ताला, ये बात ध्यान में रखो। इतना सारा वर्ड्स के झूठे किस्से बोल बोल कर मुसलमानों, अब तो मैं बता ना, इसके बाद पहले बयान फरमाई, मुसलमानों के साथ एक ही साजिश हो सकती है। मैं ये बात अपने लोग गांठ बांध के रख दो, तो एक ही साजिश हो सकती है कि मुसलमानों को ईमान से हटाया, दूसरा कुछ भी काम नहीं तुम्हारे खिलाफ साजिश करना। ये तुमको साबित करके देखूंगा आने दे। और ये जो चल रहा है 100 साल से चल रहा है साजिश, आज इसको वोट डालो, आज ये साजिश को चलाने वाले एजेंट इस मुसलमानों के अंदर ही पैदा होगा। अब उनको काबिज नहीं रहा, हमारे लोग बोल रहा है जाओ पहाड़ जैसे गुनाह करके हम माफ करेंगे। छोटे छोटे किस्से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, बोला कि मैं 100 कत्ल किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गुस्से से बोले, जा तू मेरे पास क्यों आया, कि तेरी तौबा कबूल होने दे गया, जा मैं तेरे लिए जाने। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला नहीं था, तौबा कबूल करने आया आदमी। अब क्या उस वक्त के मुसलमान घर में पैदा होने वाले लोग थे, काफिर थे, वो मुनाफिक थे, मुशरिक थे, वो ईमान लाया। वो ईमान ला के बोल रहा है मैं 100 कत्ल किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको झिड़कार दे देगा। छोटे किस्से। फिर वो गया पहाड़ पर जाकर रोते बैठा, तो फिर अल्लाह उसकी दुआ, अल्लाह के नजर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमत कम घटाने की भी साजिश है। माज़अल्लाह, इतने खतरनाक लोग हैं, भेष बदल के पेन करेंगे और आशिक रसूल का, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहले बैत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के लोगों की जो है वैल्यू कम करने के काम इनका चालू है। छोटे छोटे किस्से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी परसों बताना, जाओ तुम्हारे नबी सब तुम्हारे लिए उम्मत ही कर रहे थे। एक और किस्सा आया था मेरे, उसके ऊपर वीडियो है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जो है मदीने के अंदर एक रूम को बंद कर लिया अपने आप को, बाहर नहीं निकले। पहले दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बोले कौन आए नहीं बाहर, बहुत दरवाजा खटखटा है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु दरवाजा खटखटा आए नहीं। तीसरे दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बोले देखो तुम तो करते। अब ये सब छोटे किस्से हैं। पहले दिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब कर रहे थे, जब दूसरे दिन हमारा नंबर नहीं आएगा कुछ बट देगा, पहले दिन इनका नंबर, तो ऐसा क्या था, क्या कोशिश सब लोग कुछ करेंगे ना। ये सब छोटे किस्से हैं। फिर तीसरे दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बोले, तो बोले इनका नहीं सुने तो मेरा क्या सुनेंगे, ऐसा करिए इनके हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बोले बेटी की बात सुनेंगे। फिर बेटी आकर बोले अब्बा सलाम अलैकुम, बोले अल्लाह अब्बा सलाम अलैकुम सलाम। अब बेटी को भी 3 दिन मालूम नहीं, बाजू के घर है, अपने आप को अंदर रख ले बड़े से। दूसरे किस्से में जो है ना घंटे घंटे को बाप बेटी मिल रहे हैं। ये सब छोटे किस्से। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को तो किस्से ऐसे रंगे से हैं कि वो अभी सब बेटे अपने बाप के घर को ऐसा बगैर शोहर की इजाजत के जाना, ऐसे किस्से रंगा रहे सब। ये माशरा खराब करने की साजिश हमारे अंदर कर रहे थे। फिर जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बोले सलाम करे तो जवाब दिए, तो उनकी भी दर्द भरी आवाज़ से रोना आ रहा था कि आप अंदर बंद हैं। तो बाहर आकर बोले नहीं मैं बैठा था कि अल्लाह ताला जो है मेरी उम्मत को माफ़ करे बगैर मैं ऐसे उठने वाला नहीं हूँ। फिर आयत नाज़िल हुई, कौन सी आयत, सूरत ज़ुहा की, जो पढ़ कर सुना था शुरू, बोला सौफा युती का रब्बू का फतरज़ा। अल्लाह ने बयान फरमाया कि जाओ जिस अल्लाह ताला तुमको वो सब कुछ अता करेगा जिससे तुम राजी हो जाओगे। ये बयान किया गया किस्सा है, बाकायदा टेक्स्ट मैसेजेस बहुत फिर रहे थे साल 1.5 साल पहले। अब इसमें देखो झूठ की सब में बड़ी अलामत, ये तो अभी झूठ हो गए। तो पहले तो अबू बकर सिद्दीक खाली दरवाजा खटखटाया, हज़रत उमर फारूक बैठे, मेरा नंबर दूसरे दिन आने का, ये ऐसा कहाँ रहता क्या। फिर वो ये सब हो गया। ये जो आयत उसके अंदर बयान की गई है वो किस्से के अंदर, ये आयत जो है मैं बता था कि सूरत शुरू में 8वीं वही है। ये सूरह उस वक्त नाजिल हुआ जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अभी ईमान नहीं लाए थे। हज़रत उमर फारूक ईमान नहीं लाते, वो आयत यहाँ बता रहे, जबकि हज़रत उमर फारूक में मौजूद है। झूठ इतना बड़ा। अब इतनी बड़ी डेयरिंग क्यों कर रहे हैं उन्होंने? क्योंकि उनको मालूम पड़ा है कुरान में जाने वाले थे, बेवकूफ़ कुरान में देखने वाले नहीं, अभी क्या भी बोलो चल रहा है। एक किस्सा है, कुत्ते को एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे गए थे कि
بکری جو ہے وہ ایک دو بچے پیدا ہوتے لیکن ان کی برکت اتنی ہے کاٹ کر کھاتے تو بھی. اور کتے 8 بچے جنتے ان کی برکت ہی وہ بچے ان کی نسل ہوتی نسل. پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے کہتے کتا جو ہے فجر رات بھر بھونکتا فجر کی نماز پر سوتا ہے اور بکری رات بھر سو فجر کی نماز پر اٹھتی کر وہ ایسا ہے. اب کیا بکری پر فجر کی نماز فرض ہے کتے پر فرض ہے بولو تو. انسان کو سبق دینے کے لیے کتے کی مثال ہے. اسلام ایسا ہے اور کتے کو تو اللہ تعالیٰ پیدائش کیا رات بھر جاگنے کے لیے ہو. اس کو کہا تم توقع کرے فجر میں اٹھنے کی. کتا ہے کس لیے پہلا دینے کے لیے ہے نا. تو رات بھر جاگی نہیں ہونے. ایسے بیوقوف مسلمانوں کو بیوقوف سمجھ رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قصہ آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی. اس کے اتنے 1000 دن ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک نبی تھے. اس کے اتنے 1000 دن ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اتنے دن رہے. اس کے اتنے 1000 دن ہوئے. مدینہ میں اتنے دن رہے. اتنے 1000 دن ہوئے. یہ بات جو کوئی پہلائے گا آگے اس کو اتنے دن کا ثواب ملے گا. ابھی بات یہ تو ایسا کہ اوپر سے بیوقوف ہی گیا. کچھ لوگ ابھی سادہ ایمان والے ہوتے اسی بیچتے. اب وہ دینا جو لکھے سوئے نا وہ 365 سے ملٹیپلا کرے سوئے. جبکہ اسلامی سال 355 دن کا رہتا 54 دن کا رہتا. وہ جو دن ہے 23 سال زندگی 63 سال تھے. کتنے 1000 دن ہوئے نا ملٹیپلائڈ ہوا ہے 365 کرے سے. اسلامی سال کتنے دن کا رہتا ہے 354 دن کا رہتا ہے. پھر بھی کریں گے ڈیرنگ. کیوں ڈیرنگ کریں ان کو معلوم ہے اتنا بھی مسلمانوں کا عقل نہیں. تو یہ غلط قصے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہے ہیں بہت ساوت رہنے کی ضرورت ہے. تو بتانا چاہ رہا تھا کہ توبہ کے بارے میں توبہ کے بارے میں سے جھوٹے قصے چلا یہ نہیں ہے. ایسی صورت کا حوالہ دیا گیا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان بھی نہیں رہے. یہ جھوٹا قصہ ہے اس کا مطلب. تو یہ اور وہ نازل کس لیے ہوا میں تم کو تفسیر میں بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آنا بند ہوئی تھی. اللہ بیان فرمایا نہیں ابھی آگے آگے مسلمان زیادہ سے زیادہ بنتے جائیں گے تم راضی ہو جائیں گے. اس کے لیے ہو امت ہی تو ابھی کیوں کر رہے ہیں کہ تم گناہ کرتے رہو. یہ عیسائی مذہب اس لیے برباد ہوا. عیسائی کو جو برباد کرے انہوں نے ایک عقیدہ بنے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر چڑھایا گیا اس میں تمام عیسائی کو گناہ معاف ہو گئے. تمام عیسائی کو گناہوں کی سزا انہوں نے بھوگ لی. اب کیا کرتے کرو سور کا گوشت کھاؤ اور ماں بیٹی بہن بھائی میں کچھ پردہ مت کرو. کیا بھی کرو ننگے ناچو چڑھ رہا ہے. حالانکہ پوری کتاب قرآن کی جیسی کتاب ان کے گھروں میں موجود ہے. معمولی چیز کرے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سے کوئی عقیدہ نہیں بنا سکے. آج جو ہے نا یہ سب چل رہا ہے. اس کے لیے بہت چوکنا رہے. اس کے لیے جو توبہ کے بارے میں جو ہے نا پہاڑ جیسے گناہ کر کے آؤ توبہ معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کیا بھی کرو. یہ بتانا چاہیے کنڈیشن کس کی معاف ہونے والی. اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسے گناہ نہیں زمین کے اس سے لے کر آسمان کے اتنے گناہ رہتے معاف کرنے والا بے شک معاف کرنے والا ہے. لیکن کنڈیشن اپلائی ہے. ٹرمس اینڈ کنڈیشن کیا ہے. گناہ جو ہے نادانی میں ہونا چاہیے. جان بوجھ کر دھڑلنے سے کیا گیا گناہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھیں بھلا من کسبا سیئۃ وآتت بہ خطیئۃ اولئک اصحاب النار هم فیہا. کیوں نہیں جس نے ایک گناہ کمایا اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیرا کر لیا یہی لوگ آگ جہنم والے اس میں ہمیشہ رہیں گے. مطلب کمانے کا گناہ خطاؤں نے گھیرا کر لیا مطلب کیا روز کر رہا ہے جم گیا گناہ پر انٹینشنلی کر رہا ہے. یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہاں وہی بتا رہا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی توبہ اللہ تعالیٰ کے تم ذمے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے. یعملون السوء بجہالۃ یعملون عمل کرنا سوء برائی جہالۃ جہالت کے معنی ہم کو معلوم ہے نادانی میں کوئی گناہ کرتا تو ان کی توبہ قبول کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے. اور توبہ اور نادانی میں گناہ کر کے فوراً توبہ کرنا ان کی ذمہ داری قبول کرنے کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے جاننے والا اس کو معلوم ہے. اللہ یہ حکمت اس کو اللہ کو معلوم ہے. کیا ہے انسان بار بار گناہ کرنے والا معلوم ہے. نادانی میں گناہ ہو کر فوراً توبہ کرے گا تو مانے کیا آئے گا اللہ کو مانا اس نے مجھے سزا دینے پر قادر ہے مجھے زندہ کرنے والا ایک بار میرے گناہ کے پکڑ کرنے والا. یہ اللہ کو مانا اس لیے اللہ خوش ہوتا ہے. فوراً توبہ کر رہا ہے اس سے گناہ اور بار بار گناہ ہوتے جائیں گے. یہ ایسا معاملہ جیسا ماں ایک بچے کو دکھ لی اور ماں اس کے پاس آتی ہے بچہ اس کے پاس اور آتے لپک کرنا. ایسا معاملہ اللہ کا اور ہمارا رہنا چاہیے. ہمارے ہاتھ سے کوئی گناہ ہوگا یا تو فوراً اور رجوع کرنا. گناہ ہونے والا ہوتے رہنے والے اللہ انسان کو ایسا بنائے. لیکن یہ کنڈیشن ہے. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اور ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے یہاں تک کہ جب ان کو موت آ جائے جب دیکھیں گے اب توبہ کریں گے. تُبْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ اب بولیں گے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں.
इनकी जिम्मेदारी तौबा कबूल करने की जिम्मेदारी अल्लाह के ऊपर नहीं है। दोनों भी चीजें बताए, किसकी जिम्मेदारी कबूल करने की जिम्मेदारी है, किसकी कबूल करने की जिम्मेदारी नहीं कबूल करने की जिम्मेदारी, वो दोनों भी अल्लाह ने बयान किया। तो बड़ा कायदा है, तौबा कबूल होने वाली, जमीन और आसमान के बराबर गुनाह रहेंगे तो भी कबूल होने वाली, तौबा कबूल होने वाली, समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह रहेंगे तो तौबा कबूल होने वाली। मगर इंटेंशनल गुनाह किया है, जम गया गुनाह पर, रोज रोज कर रहा है, लेकिन बाद में तौबा करेंगे, उसकी गुनाह की तौबा की माफी नहीं होने वाली, अल्लाह ने साफ बयान किया है। इसका मतलब तुम जो है, अब हम समझते ना, बार बार करें तो हम क्या बोलते, बहुत ही बचाने का बोलते, अल्लाह ताला को भी गुस्सा आने वाला है। ये मामला है, गलती से गुनाह होगा, ये गुनाह और एक बार होगा, लेकिन गलती से होगा। जहालतीन के अंदर तीन चीजें आ गई, नादानी से यानी मालूम नहीं गुनाह है, सो वो जज्बात में किया या गुस्से में किया, ये सब उसके अंदर आ गया। ऐसा बहुत गुस्से में आया, किसी को गाली दिया घर में, बड़े आदमियों को, बड़े भाई को, बाप कुछ कुछ उल्टा बोला, फौरन रुजू करना, अल्लाह से तौबा करना, उसकी माफी मांगना। गुस्से में हो सकता है क्या, ये चीजें जो अल्लाह ताला की जो है माफ करने की जिम्मेदार है। अलान वलल्लज़ीना यमूतूना हुम कुफ़ार, और न उन लोगों की जो मर जाते हैं हालत कुफ्र में, यानी तौबा नहीं करके मरते, उनकी भी तौबा कबूल करना। वैसा क्या है हमारा, बाद में तौबा कबूल करेंगे, बाद में तौबा करेंगे, बाद में तौबा करेंगे, मरा तो कुफ्र की हालत में मरा। फिर ये जो आज जो बताया जा रहा है हमारे सामने, हमारे को जो बताया जा रहा है, बड़े बड़े हमारे जो है दीनी रहनुमा बता रहे, जाओ सब कुछ माफ होने वाला है, माफी होने वाला है, बोल के ऐसा मरा, इनकी भी तौबा कबूल करना जो अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं है। उलाइका आदतना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही लोग हैं, इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है, ये मुसलमान। तो इस तरह से जो है हमारा मामला होना चाहिए। हम जो गुनाह में ये हमको बिगाड़ा जा रहा है बाकायदा प्लानिंग के तहत। कोई भी बड़े बड़े मजमे में बैठो, कितने भी यूट्यूब पर देखो, बड़े बड़े उलमाओं की सिर्फ एक ही बात चल रही, जाओ तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए बहुत मार खाया, तुम्हारे नबी ने तुम्हारे उम्मती कर रहे थे, झूठे किस्से बताए। मतलब क्या है, वही ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताए, कोई बताए, जाओ गुनाह जिन्ना खुली करो, सूद का कारोबार करो, शराब पियो, नंगे नाच करो, घर के अंदर जो सब कुछ करो, ये सब बताया जा रहा है। मुसलमान उसमें जा रहे हैं, ये साजिश है, इनको पहचानो, ये हमारे सच्चे, ये असल दुश्मन है, हमारे अंदर बैठे हुए दुश्मन है। इन्होंने साजिश 100 साल पहले से शुरू की थी, 1924 से, लेकिन आज जो है 2002, 4, 2005 से बात है, 2002 से, ये 20वीं सदी से चालू, 21वीं सदी, हमारे अंदर जो उनके एजेंट हैं, हजारों मिसाल में दे सकता, हजारों मिसाल हमारे अंदर उनके एजेंट बैठे हैं, हमको बेफिक्र कर रहे हैं, आखिरत से मुड़ना है, निडर बना रहे हैं अल्लाह के मुकाबले में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथु निसाअ करहा वला ताज़ुलुहुन्ना लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमुहुन्ना इल्ला अय्यातियना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना वआशिरुहुन्ना बिलमारूफ़ि फ़इन करीतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शयअन व यजअल अल्लाहु फ़ीहि खैरन कतीरा। आए ईमान वालों, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम वारिस बन जाओ औरतों की ज़बरदस्ती, और ना इन्हें रोके रखो कि इनसे अपना दिया हुआ कुछ वापस ले लो। ज़बरदस्ती औरतों को वारिस बनना, इसके बारे में वो भी है कि जो है सौतेरी माओं से निकाह करते थे और उनके जमीन जायदाद के वारिस बनते थे। या किसी औरत को भी जो ज़बरदस्ती तुम उसको अपने पास ला के रख रहे हैं, गलत काम जो है, इमोरल जो ताल्लुकात जो गैर क्या बोलते अनैतिक संबंध रखना तुम्हारे हलाल नहीं है। तो ज़बरदस्ती उनको रोके नहीं रखना चाहिए कि इनसे अपना दिया हुआ कुछ वापस ले लो। ये तलाक शुदा के मामले में भी है, तलाक दे रहे हैं, तुमको पसंद नहीं है तो तुम उनको जो है दबा कर रख कर जो है उनका माल जो दिया हुआ जो माल है जो बाहर दिया वो लेने की भी नीयत तुम्हारी नहीं रहना चाहिए। हाँ, मगर ये कि वो खुली बेहयाई के मुर्तकिब हो, खुली अगर बेहयाई समझ में तुमको कि गलत काम कर रही है औरत, तो उसको तुम जो है छोड़ सकते हो कि ज़बरदस्ती से तुम उनको ये मत करो सताने के लिए वगैरह, या तुमको अच्छी नहीं लग रही, दिखने में अच्छी नहीं है तो उसको जो है तुम ऐसा काम मत करो। और इन औरतों के साथ दस्तूर के मुताबिक गुजरान करो। फिर अगर तुम्हें ना पसंद हो तो आए मुमकिन है कि तुम्हें एक चीज़ ना पसंद हो और अल्लाह रखे इसमें बहुत सी भलाई हो सकता है तुमको देखने में, अभी पहला तो मामला ऐसा नहीं जनाब, तो देख दिखा कर सब कुछ करते हैं, तो तुमको पसंद नहीं शादी के बाद तो तुमको जो है उसको फौरन जो उसके साथ कतई ताल्लुक मत करो। हो सकता है उसको मौका दो, उसके अंदर दूसरे कुछ अच्छे सलाहियतें रहेंगे, वो तुमको बाद में पसंद जाएंगे, तो वो उसको मौका दो। ऐसा ना हो कि एक चीज़ तुमको ना पसंद हो लेकिन अल्लाह उसमें दूसरी भलाई कुछ रखा होगा, तो ऐसा मत करो कि फौरन जो है ये करके जो है फिर एक कोई चीज़ जो है तुमको शादी के दूसरे तीसरे दिन से कोई बात पसंद नहीं है, दिखने को अच्छी है, तो उसको थोड़े दिन रखो, मौका दो। तलाक एक बहुत अच्छा रास्ता है लेकिन अल्लाह को बहुत नापसंद रास्ता है। आखिर तक जो है बहुत ना चारा नहीं रहेगा तो फिर तलाक का रास्ता तुम्हारे लिए दिया है। वाइन अरद तुम
अरदतुम इस्तिबलाला ज़ौज मकाना ज़ौज फ़आतयतुम इहदाहुन्ना क़िंतारा फ़ला ताख़ुज़ू मिन्हु शैआ अताख़ुज़ूनहु बुहताना व इस्मम मुबीना। और अगर बदल देना चाहो एक बीवी की जगह दूसरी बीवी और तुमने इनमें से किसी को खजाना दिया है तो इससे कुछ वापस न लो, क्या तुम वो लेते हो बहुतान लगाकर सरी गुना खुले गुना से? यानी चुप काली बिल्ली पसंद नहीं तो क्या भी बहुतान लगा रहे हैं, कुछ भी ऐसी नहीं वैसी नहीं, बात सुनती नहीं, क्या बोल कर दूसरी बीवी लाना चाहते रहे तो उस पर बहुतान लगाकर मत निकालो इसको भी रखो। बहुत लास्ट की स्टेप पे जो तलाक का मामला है, और तलाक देकर भी उनसे माल वापस लेने का, दिया हुआ महर वापस हड़प करने का, ऐसा मत करो। ये हम कल भी देखे, सूर्य बकरा में भी देखे थे, जो कुछ भी महर उनको दिया है उनको वापस लेना नहीं चाहिए। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो कैफ़ ताख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअज़ुकुम इला बाज़िन व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा। और तुम कैसे वापस लोगे, और अलबत्ता तुम में से एक दूसरे तक पहुंच चुका है, तुम एक दूसरे को जो है सोहबत कर चुके हो, एक दूसरे के लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके हो, तुम कैसे पैसे वापस लेते हो उनके? और उन्होंने तुमसे पुख्ता हाथ भी रहे, तुमसे निकाह भी किया था। ऐसे मामले में तुमसे जो है ये माल पसंद लेना अच्छी बात नहीं, जो महर दिया है वो। वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़ता व साअ सबीला। और अपने देखो इन औरतों से निकाह ना करो जिनसे तुम्हारे बाप ने निकाह किया हो। ये होता था पहले, इतना बदतरीन समाज था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वो दुनिया के सब में आला तरीन लोग बने। ये बड़ा इनकलाब, अखलाकी इनकलाब आना बहुत बड़ी बात है। सोशल इनकलाब आ सकता, इकोनॉमिकल क्रांति हो सकती है इनका, अखलाकी इनकलाब तब्दीली लाना किसी माशरे के अंदर बहुत बड़ा काम है। तो ये जो है इनके अंदर होता था। माओं की जो है सौतेली माओं से निकाह करते थे। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि उन औरतों से निकाह करो ना करो जिनसे तुम्हारे बाप ने निकाह किया था, मगर जो पहले गुजर चुका सो गुजर चुका, अभी तक जो हो चुका तो हो चुका। इसके मामले ये, अभी एक आदमी ईमान लाया, ईमान लाने से पहले उन्हें अपनी सौतेली माँ से निकाह किया होगा तो उसको फौरन तलाक देने का हुक्म देगा। अब उससे कोई औलाद हो गई तो उसको तुम हराम की औलाद मत कहो। इसको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अब जो एक नस्ल चलेगी ऐसा, इसलिए कह रहा है कि जो हो चुका सो हो चुका। बेशक ये बेहया और बहुत बड़ी गजब की बात है, ऐसा मत करो, बहुत बुरा गलत रास्ता है, गलत तरीका है, बहुत बेहया का रास्ता, ऐसा मत करो। अभी बताया जा रहा है कि किस किस औरतों से निकाह हराम है, किस किस औरतों से जायज़ है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख्वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती रज़अनाकुम अख्वातुकुम मिनर रज़ाअती व उम्महातुन निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती। बहुत बड़ी आयत है। तुम पर हराम की गई है तुम्हारे माएँ, माँ में फिर माँ की माँ भी आती, बाप की माँ भी आती, हराम है। तुम्हारी बेटियां, बेटों में नवासी भी आ गई, पोती भी आ गई, और भाइयों के बेटियां भी आ गई। वह अख्वातुकुम, तुम्हारी बहनें, बहनों के अंदर जो है दूध शरीक बहन भी आ गई, बाप शरीक बहन भी आ गई, हराम है। यानी ऐसी बहन जो ऐसी माँ से पैदा हुई जिसका दूध तुमने पिया है, पहले सिस्टम होता था दूध पिलाने को, दाई रखते थे, उसकी अगर बेटी हो किसी भी बाप से हो वो भी बहन में आती है, वो भी हराम की गई। इसमें बहुत बड़े बड़े मसले, बहुत फिकी मसले हैं। हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है, एक जो रोज़ा छोड़ने के लिए जितनी मिकदार लगती है उतना भी दूध पिया रहेगा तो वो बहन बन गई उसकी। कुछ जो है माँ के नज़दीक है कि 1 साल पीना चाहिए या पेट भर के पीना चाहिए तो बहन बन जाती है। बहुत तो डीप मामले हैं, लेकिन ऊपर से हम देखेंगे बहनें तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालाएँ, तो उसमें फूफियों के अंदर जो चचाजाद फूफियाँ भी आ गए, खाला में चचाजाद खाला भी आ गए, सब आ गए इसके अंदर। वो बनातुल अखी, और तुम्हारी भतीजियाँ और बेटियां, भतीजे भी आ गए, बेटियां भी, और किसकी बेटियां, भाई बहन की बेटियां, भांजियां आ गई, ये भी हराम है तुम्हारे पर। वो उम्महातुकुम अल्लाती, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, वो भी तुम पर हराम है। वह अख्वातुकुम मिन रज़ाअती, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी औरत की माएँ, सास भी तुम्हारे पर जो है हराम है, और दूध शरीक बहन भी हराम है। और ये सब इसका अपोजिट लेगा, बहन के लिए भाई, भाई के लिए बहन हराम है तो बहन के लिए भाई हराम है। खाला हराम है भांजे के लिए तो खाला को भांजा हराम है, भांजे को खाला हराम है, ये सब हराम है। सास भी हराम है, और सास की दादी सास भी इसमें हराम होती है, नानी सास भी हराम होती है इसके। और तुम्हारी वो बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में है, तुम्हारी इन बीवियों से है जिनसे तुमने सोहबत की, यानी एक बीवी शादी कर ली, पहले उसके पहले शोहर से अगर बेटी है तो बेटी भी हराम है। फिर उसके वो जो अगर माँ है, ये बीवी है, तो उसको पहले शोहर से दूसरा बेटा रहेगा तो उसके लिए वो हराम।
बस अगर तुमने इनसे सोबत नहीं की तो कुछ गुनाह नहीं है। फिर वो सोबत नहीं भी सुनेगी, शादी हुई लेकिन सोबत नहीं भी ऐसा तलाक हुआ, उसके पहले शोहर की बेटी नहीं तो कर सकता हूँ। वो हलाइलु अबनाइकुमुल लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमउ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा। और तुम्हारे इन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे पुष्ट से है, तुम्हारे नस्ल से जो बेटे उनकी बीवियां, बहुएं जो है, बेटा मर जाएगा तो बहू भी हलाल नहीं है, वो भी हराम है। और ये कि तुम दो बहनों को जमा ना करो, दो बहनों को एक साथ निकाह नहीं कर सकते। बीवी भी है, साली भी निकाह नहीं हो सकता, तो उसे एक बीवी मरने के बाद साली से कर सकते हैं, तो ये भी तुम नहीं कर सकते। और जो पहले गुजर चुका तो हो चुका, सो हो चुका, उस पर पकड़ नहीं है। बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला ये सारे मुहर्रमात बताए गए, मुहर्रम जो है ना मुहर्रम बताए जाते हैं, इसी के साथ सब्र करना भी मना है। जिसके साथ निकाह जाए तो उसके साथ सब्र भी नहीं कर सकते। तो ये सब इसके लिए हज के अंदर पाबंदी आती है। महरम कौन तो होना बोलते, बेटा होना, बाप होना, ये होना, तो ये बताया गया। अब इंशाल्लाह ये चौथा पूर्व पारा है, पांचवा पारा। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम तबतगू बि अमवालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना फमस्तमताअतुम बिही मिनहुन्ना फआतुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा वला जुनाहा अलैकुम फीमा तराज़यतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा। और खाविंद वाली औरतें हराम है, जिसका शोहर ऑलरेडी है वो हराम। मोहसिनात कहते हैं उसको। मोहसिनात दो होती है, एक जो है खानदानी लड़की जिसके माँ बाप है, सब कुछ है, वो बिगर शादी, उसको भी मोहसिनात लड़की कहते हैं। और जिसका शोहर है वो बीवी। अब यहाँ पर वो है बीवी जिसके शोहर जिंदा है, वो भी हराम है। मगर काफिरों की औरतें जिनकी मालिक तुम्हारे दाहिने हाथ में, यानी लौंडिया, माँ मलकत ऐमान हो, लौंडिया तुम्हारे ऊपर, उनके शोहर भी अगर हैं कुफ्र, दारुल कुफ्र में, तो फिर दारुल इस्लाम के हाथ लग गई तो वो हराम नहीं, हलाल है। और वो निकाह उनके टूट गए इधर आने के बाद, जो कल जो बताया पूरा लौंडी किसको कहते हैं, वो हलाल है। ये तुम पर अल्लाह का हुक्म है, और उसके सिवा सब औरतें तुम्हारे लिए हलाल की गई हैं, बशर्ते ये कि तुम चाहो अपने मालों से कह दे निकाह में ला। हलाल की गई मतलब ऐसा निकाह में मुंह मारने के, निकाह में लाना है। महर देके निकाह में लाएंगे तो तुम्हारे लिए सारे हराम है। बस कैद में निकाह में लाने को न कि हौस रानी को हौस निकालने के न हो, निकाह के कैद से जो है खानदान चलाने के लिए से बाकी इनको छोड़कर बाकी की सारे औरतें हलाल है। बस तुम में से जो इनसे नफा है लज्जत उठाना हासिल करे तो इनके लिए मुकर्रर किए महर दे दे, और तुम पर इसमें कुछ गुनाह नहीं जिस पर तुम बाहम रजामंद हो जाओ। इसके मुकर्रर कर लेने के बाद एक बार महर मुकर्रर हो गया, उसके बाद में निकाह में आने के बाद में और कम ज़्यादा करेंगे तो कुछ गुनाह नहीं। मर्जी से अगर आपस में बीवी, कल भी हम देखें कि बीवी तुमको महर छोड़ दे तो चलता है रजामंदी से, जिंदगी में जिंदा रह जाए, मरे बाद में। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। ये सारी बातें जो है इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है। ये हिकमत हमें जो है इस पर अमल करने के बाद समझ में आती है कि माशाल्लाह कितना पाकीज़ा माशाल्लाह बने। वमन लम यस्तती मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसिनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतियातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदकुम मिन बाज़ फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ़ी। और जो तुम में से कुदरत न रखता हो, ताकत न रखता हो कि आज़ाद मुसलमान यानी मोहसिनात से, आज़ाद मुसलमान लड़की से निकाह कर ले। अब यह मोहसिनात के माने आज़ाद लड़की जिसके शादी, तो वो जो है जो मुसलमान कनीज तुम्हारे हाथ लगी, तुम्हारे मुल्क के कब्जे में आई है, वो लौंडी, उससे तुम निकाह कर सकते हो। अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानने वाला है। ये भी कंडीशन में कल बताना भूल गए थे कि वो लड़कों को जो लौंडिया बन के आए उनको ईमान लाना पड़ेगा, और उनको समझा बुझा कर उनको दीन बताकर ईमान लाने की ताकीद है। उसके बाद फिर वो तुम्हारे निकाह में आ सकते हैं। यहाँ पर वो बात आ गई। अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है, और तुम एक दूसरे के हम जिनसे हो, सो तुम उनके मालिक की इजाज़त से उनसे निकाह कर लो। जो सरकार को बताया था, सरकार जिसको उसका कमीज बनेगी उसकी इजाज़त तुम निकाह कर सकते हैं। और तुम्हारे अल्लाह ईमान को जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं है बोलकर उसको ईमान की बुनियाद पर कमज़ोर मत समझो। अल्लाह को सबका ईमान मालूम है, तो ईमान की बुनियाद पर जो है कोई सीनियर और जूनियर नहीं ईमान के बारे में। ईमान जिसका बड़ा ज़्यादा है वो अल्लाह के नज़दीक ईमानदार है, सीनियर और जूनियर अल्लाह के पास नहीं है। तो वही बता जा रहा है कि तुम जो है अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। तुम एक दूसरे के हम जिनसे सारे के सारे इंसान हैं, और उनके मालिक की इजाज़त से तुम इनसे निकाह कर लो।
اور ان کو دے دو ان کے مہر دستور کے مطابق جو کچھ مہر ہے ان کو دے کر نکاح کرنا چاہیے تو لونڈیوں کے ساتھ. اگر خاندانی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رہے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے. مہر کا مہر جو ہے زیادہ زیادہ مقرر کرنے کی تاکید ہے. تو مہر دینے کی جس کو طاقت نہیں ہے تو یہ جو لونڈے سے نکاح کر سکتا ہے وہ کم مہر میں تمہارے پاس آ سکتی ہے. اور یہ جو ہے نکاح میں لانے کے لیے سب ہونا چاہیے, نہ کہ مستی نکالنے کے لیے نہ آشنائی کرنے والوں چوری چھپے نہ آشنائی کرنے والے بھی نہیں ہونا چاہیے. نکاح کے قید میں لا کر خاندانی نظام چلانے کے لیے تمہارا نیت یہ ہونا چاہیے. فَإِذَا حُسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا انصاف کس طرح سے ہے. اور بس جب نکاح میں آ جائے پھر اگر وہ بے حیائی کے کام کرے تو ان پر نصف سزا ہے جو آزاد عورتوں پر ہے. جو سزا یہاں پر بتائی گئی, اگر کوئی نکاح میں عورت جو آئی, نکاح میں شادی شدہ عورت اگر گناہ کرے گی غلط کام کرے گی تو اس کو جو سزا ہے اس کی آدھی سزا ان کو ہے لونڈیوں کو. یہ اللہ کا انصاف دے گا کتنا ہے. کیوں کہ ان کی آدھی عمر جو ہے غیر مسلم معاشرے میں پڑی سکے. اب وہاں زنا کے بارے میں کتنی وہ سنویدنشیلتا وہ ہے کہ نہیں ہے معلوم نہیں. ابھی ہمارے یہاں تو انڈیا میں تو جو ہے زنا کے لیے شبدش نہیں ہے دوسرے زبان میں, ڈائریکٹ بلاತ್ಕಾರ شبدش ہے. زنا جو ہے سمتی سی جو سمبھوگ ہوتا ہے اس کے لیے اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا. آج وہ پچھلے 7-8 سال سے ریپ اتنا چلا ہے نا, وہ زنا ابھی آسان کر دیا اس کو. زنا چلتا ہوا ایسا سمتی سے ہونا, لیکن اسلام جو ہے سمتی دوسرے مذہب کے اندر بھی سمتی سے ہونا اس کو زنا کرے اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. سمتی سے سمبھوگ بولنا پڑے گا, واقع بولنا پڑتا اس کو. زنا جو لفظ ہے صرف اسلام میں ہے. تو وہ زنا کرنے والی عورتیں جو ہے شادی شدہ عورتیں ان کو جو سزا ہے اس کی لونڈی اگر زنا کرے, اگر زنا کا کام کرے گی شادی کے بعد اس کی آدھی سزا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. اس لیے بڑی بڑی باتیں یہ انصاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ کلام اللہ کا ہونے کی نشانی ہے بڑی بڑی. عام طور پہ کیا ہوتا ہے غیر مسلمان کی عورت ہے اسے زیادہ سزا تو زیادہ مارو, ایسا ہونا چاہیے. اللہ کا انصاف ہے. اللہ تمام انسانوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. اس کا جو آدھی زندگی جو گزری غیر مسلم معاشرے کے اندر گزری, وہاں پر زنا کے بارے میں کتنی سنویدنشیل ہے. جنا وہ پردہ داری ان کے گھروں میں ہے کہ نہیں کیا معلوم. جیسا کہ ہم کو معلوم ہے ہم دیکھ رہے غیر مسلمان گھروں میں جو ہے ہمارے یہاں تو باپ ہمارے گھروں میں ایسا ہے بچی اگر بڑی ہونے لگی تو ہمارے گھر میں باپ بھی جو ہے پردہ کرنا شروع کر دے. باپ خود ہمارے گھروں میں آج ہے یہ رواج مسلمانوں کے اندر آج بھی ہے, ان کے اندر نہیں ہے. وہ جو ہے وہ خالی ٹاول پر پورا گھر میں گئے تو ٹاول پر رہتے ہیں زندگی پورے دن بھر گھر میں جوان بیٹے بہنیں سب ہیں. ویسے معاشرے میں سے جب آئیں گے تو اس کو زنا کی اتنی جو ہے حص اس کے اندر نہیں رہتی. اللہ نے اس لیے ان کی سزا آدھی رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. پھر جب تم سے نکاح میں آنے کے بعد اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے تو ان پر نصف سزا ہے جو آزاد عورتوں کی ہے. خاندانی مسلم عورتوں کو جو سزا ہے اس کی آدھی سزا ان کو دی گئی ہے. یہ اس لیے کہ جو تم میں سے ڈرے بدکاری کی تکلیف میں پڑنے سے ڈرے, اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان. ان کے معاملے میں سزا دینے کے لیے تم صبر کرو. ان کو جو ہے ایک تو غیر مسلم ہے, پھر ابھی ایمان لائے, پھر ان کو جیت کر لیے سے ہم اس کے حساب سے ان کو کیسا بھی استعمال کر چلتا کیسا بھی مارے چلتا وہ نہیں ہونا چاہیے. بہت ان کو بھی جو اسلامی طریقے سے ان کو لینا چاہیے. جب فوج کے قبضے میں آ جائیں گے تو اس کو بہت بڑی تاکید ہے حدیثوں کے اندر. ہمارے عورتوں کو لا کر ان کے پاس چھوڑنا پڑے گا. پھر ان کو جو ہے ان کو کیا بولتے ان کی تسکین کر کے نہیں ابھی تم ہاں ہمارے قبضے میں آئیے, تمہارے شوہر مر گئے یا بھاگ کر چلے گئے, سمجھا بجھا کر ہمارے عورتیں ان کو لا کر ہمارے سرکار کے اس میں رکھیں گے. پھر سپہ سالار جا کر وزٹ کریں گا, ان کو جو چاہیے وہ دیں گا. پھر اسلام بتانا شروع کریں گے, ان کو ایمان لانے کے لیے ان کو تیار کیا جائے گا. پھر اس کے بعد وہ گورنمنٹ جو ہے بڑے لوگوں کی کفالت میں دے گی. پھر وہ بڑے لوگ جسے چاہے اسے نکاح کر کے دیں گے. پھر اس کے بعد نکاح کے بعد بھی اگر کوئی غلط کام کرے گی تو ان کو آدھی سزا ہے. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ قرآن اگر سامنے واضح کریں گے سمجھ میں آتا. لیکن آج اسلام کی جو ہے کیا تصویر بنا کر پیش کی جا رہی ہے دنیا میں. تعلیمات دیکھو اسلام کی ویسے ابھی تو اتنا زور جو ہے سوشل میڈیا پر چالو ہے, غلط مسلمان اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں جھوٹ اتنا پھیلایا جا رہا ہے. اس کو صرف یہ کچھ ہے ہم قرآن کو اگر واضح کریں گے تبھی معلوم پڑ سکتا. میڈیا چاہے کتنا بھی کام کرے, میڈیا ایک بہت اثردار چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ہمارے اخلاق جو ہے وہ میڈیا سے زیادہ اثردار ہو سکتے. ہم اگر کتنے ٹی وی ہیں کتنے لوگ دیکھتے رہیں گے, بہت کم لوگ دیکھتے, لیکن اگر ہم 20 کروڑ کے 20 کروڑ مسلمان اگر ہم کیریئر بن جائیں گے کیریکٹر کے, ہمارے قرآن کے کیریئر بن جائیں گے
24 घंटे इस्लाम दिखता जाएगा ना, झलकते जाएगा, फिर वो उनको झूठ बोलने वालों को पकड़ पकड़ कर मारेंगे। हम उनके साथ डिबेट में बैठकर जो है बड़ी बड़ी बातें करना है शानपन नहीं है। जो डिबेट में जाकर खुद को चमकाते हैं सब उनके सब चेले हैं, सब एजेंट है, सब ये सब कुछ कर रहे हैं। मुसलमानों की बहुत बड़े लीडरशिप के दावे हैं, वो मुसलमानों को उल्लू बना रहे हैं। इनके होता तो उल्लू कौन नहीं बने मुसलमान वहां से, दूसरे गैर मुस्लिम पार्टियां भी नहीं बने। ऐसे काम कर रहे हैं मुसलमान इस्लाम के नाम पर, और मुसलमान इस्लाम रोज बदनाम होता है। कभी भी इसकी बात पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। इस तरह की चीजों जो इस्लाम की वाज़ेह अगर हो जाएगा कुरान लोगों के सामने, तो इंशाअल्लाह जो है हुआ इसके पहले इस्लाम फैला है, कहाँ बचा? जिस मुल्क में भी मुसलमान एंट्री मारे वहां लोग इस्लाम रहे। यहाँ क्यों नहीं हुआ? यहाँ काम रुक गया है 700-800 सालों से, और वो होते होते इतना दूर आ गए, हम भी दूर आ गए। अब उनकी जो प्रोपेगेंडा बहुत पीक पर है, अब उतने पीक पर जाकर हमको भी काम करने की जरूरत है। बैठे रहेंगे, आने वाली नस्लों के लिए हमारे बहुत खराब वक्त आने वाला है, खुदा ना करे, लेकिन है दिख रहा है हमारे सामने, बहुत बुरा वक्त आने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जल्दी कला